Hey, so today we are going to see the cat and the mice story. There was once a house that was overrun with mice. Let me, Where is my pencil? I think this is the pencil. Which, yeah, this is the pencil. So let me pick the color red. Okay, let's start. So there was once a house that was overrun with mice. A cat heard of this and said to herself, "That's the place for me." And off she went and took up her quarters in the house and caught the mice one by one and ate them. At last, the mice could stand it no longer, and they determined to take to their holes and stay there. "That's awkward," said the cat to herself. "The only thing to do is to coax, coax them out by trick." So she considered a while and then climbed up the wall and let herself hang down by her hind legs from a peg and pretended to be dead. By and by a mouse peeped out and saw the cat hanging there. "Aha!" it cried. "You're very clever, madam, no doubt. But you may turn yourself into a bag of meal hanging there, if you like. Yet you won't catch up coming anywhere near you. If you are wise, you won't be deceived by innocent ears of those whom you have once found to be dangerous." Okay, so that's a story, and it has some words that is actually difficult. So let me open ChatGPT as well so that while doing the story, we will learn. Okay, so I'm opening the ChatGPT at one tab and Google for pronunciation. Okay, so google.com for pronunciation. Okay, so let's. What's this? Yeah. Okay, let's see. First, there was once a house, or we can say here it as once there was a house. Okay, that was overrun with mouse. ओवररन विथ माउस मतलब कि बहुत ज्यादा भरा हुआ था। ओवररन मतलब कि एकदम भरा हुआ था विथ माइस, चूहों के चूहों से, जो कि दैट वाज ओवररन विथ माइस। यहाँ पे ओवररन ऑफ माइस भी अपन बोल सकते थे। एक डाउट आ सकता था कि हमने ऑफ क्यों नहीं भरा, ऑफ क्यों नहीं किया है ना। सो लेट्स डू दिस। चेक विथ चैट जीपीटी व्हाई ओवररन ऑफ माइस ऑफ माइस versus overrun with mice. Difference. Okay, so usually I do this. Whenever I have doubt, I clear. ठीक है, so अभी मेरे को एक डाउट आया यहाँ पे कि why overrun of mice, why not of, why with mice. Okay, so let's do what ChatGPT is saying. Okay, so overrun with mice is correct and natural. There are too many mice in the place, it's infested. Okay, so जब भी हम overrun यूज करते हैं वो with आता है। अब overrun of mice क्या होता है, थोड़ा awkward हो जाता है, incorrect in most cases. स्ट्रक्चर इज ग्रामेटिकली ऑड बट रेयरली यूज, सो ये थोड़ा सही है बट ग्रामेटिकली थोड़ा इनकरेक्ट है, बट हो जाता है। जैसे कि कहीं पे अपन ने देखा होगा एन ओवररन ऑफ माइस, टेक्निकल और साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट बट इट्स नॉट इडियोमेटिक। लेस कॉमन, awkward, there was an overrun of mice in the lab. This still sounds strange but better sentence, overrun with mice. So overrun of mice भी कभी कभी यूज हो जाता है बट overrun with mice ज्यादा सही है ग्रामेटिकली।
नहीं, फिल्ड ऑफ माइस, जब फिल्ड आता है ना, फिल्ड ऑफ माइस आता है, फिल्ड विथ माइस आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ये क्लियर हो गया, सो दैट वाज ओवर रन विथ माइस, कभी भी ऑफ नहीं आएगा, ऑफ गलत है यहाँ पे। ग्रेट। अभी क्या है? हाँ, अ कैट हर्ड ऑफ दिस, कैट ने सुना। ठीक है, ओवर रन विथ माइस, जहां पे चूहे होंगे वहां बिल्ली ने सुन लिया उसको। सो कैट ओवर रन, कैट हर्ड ऑफ दिस एंड सेड टू हरसेल्फ, और उसने से खुद को बोला, दैट्स द प्लेस फॉर मी, ये तो मेरे लिए जगह है। अभी दैट इज यानी दैट इज द प्लेस फॉर मी। एंड ऑफ शी वेंट एंड टुक अप हर क्वार्टर इन द हाउस, टुक मतलब कि जगह ले लेना। ठीक है, टुक अप मतलब कि उसने खुद का क्वार्टर एक ले लिया, उसने घर में जगह बना ली। क्वार्टर यानी कि मोस्टली जो एक रूम होता है जहाँ पे आप रहते हो, तो मोस्टली क्वार्टर्स बोलते हैं। बहुत बड़ा स्पेस होता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने कमरे में रहते हैं, उनको क्वार्टर बोलते हैं। जैसे कि एक कोई मोस्टली जैसे कि उनको भी बोलते हैं, जैसे आर्मी वाले होते हैं तो आर्मी का एक खूब बड़ा एक कैंपस होता है, और कैंपस में उनके अपने अपने घर होते हैं। तो जो एक घर होता है उसको हम क्वार्टर बोलते हैं, एक एक क्वार्टर बोलते हैं। तो ये क्या है, जो जो एक ये होता है, ये क्वार्टर होता है। ठीक है, तो ये जो है ये घर है एक। ठीक है, तो ये क्वार्टर हो गया। इन द हाउस एंड कॉट द माइस वन बाय वन एंड एट देम, और उसने क्या किया कि कॉट यानी सेकंड फॉर्म आया, चूहों को पकड़ा और एक के बाद एक खाती रही। एट लास्ट द माइस कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, अब एक बार क्या हो गया कि दे कुड नॉट स्टैंड इट नो लॉन्गर, अब उनसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो उन्होंने डिटरमाइन किया टू टेक टू देयर होल्स एंड स्टे देयर। डिटरमाइन टू टेक टू देयर होल्स, अब डिटरमाइन टू टेक टू देयर होल्स, अब यहाँ पे टेक टू देयर होल्स क्यों है, मतलब डिटरमाइन टू स्टे भी हो सकता था। लेट्स चेक इट, व्हाई नॉट स्टे, डिटरमाइन टू स्टे देयर होल्स। ठीक है, सो डिटरमाइन टू टेक टू देयर होल्स, मीनिंग, मीनिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ओके, so let's see. Determined to take to their holes meaning होता है mice have decided strongly to run and hide in their holes for safety or fear. Take to their holes यानी go quickly into their hiding places। अच्छा, वो तुरंत quickly went to into hiding, they scared were cautious hiding, they take to their holes। ठीक है, तो उसने क्या किया कि वो जब भी टेक टू का वर्ड कब होता है, जब भी हम हाइड करते हैं, तो मोस्टली डिटरमाइन टू टेक टू, डिटरमाइन टू टेक टू। तो ये फ्रेज है डिटरमाइन टू टेक टू, टेक टू समथिंग, मीनिंग समथिंग, टेप और हाइड, इसके तीन मतलब होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है कि टू स्टार्ट लाइकिंग समथिंग, यू बिगिन टू एंजॉय कंफर्टेबल विथ समथिंग, लाइक आई टेक टू making videos in English, but right now this is not sounding good. But here it means is to escape to or hide in. Okay, means take to the hills, take to the forest, take to the holes. So usually this is the correct meaning here. So if I just put it here somewhere, yeah. So this is the correct meaning of take to. Okay, so take to. ठीक है, now take to their holes. Okay, एंड स्टे देयर, और वहीं पे उन्होंने अपने होल्स में अपने छिपने का निश्चय कर लिया, और वहीं पे रुकने का भी। दैट्स awkward said द कैट टू herself, अब ये कैट खुद से बोल रही है कि ये अजीब है। द ओनली थिंग टू डू इज टू coax them आउट बाय ट्रिक, अभी इस सेंटेंस से क्या मतलब है कि उनको ट्रिक के द्वारा बाहर निकालने का एक ही रास्ता है। तो कोएक्स का मतलब क्या होता है, पहले तो इसको पढ़ते कैसे हैं, कोएक्स। सो लेट्स सी,
कोएक्स मीनिंग, पहले तो कोएक्स प्रोनाउंसिएशन देखो। मैं ऐसे कर रही हूँ कोएक्स, कोक्स। ओके, सो इट्स नॉट कोएक्स, कोक्स, कोक्स, कोक्स. So that means coax. Coax means persistently persuade to do something. Persuade to do something. मनाना. Okay. तो इसका मतलब होता है coax. Determine. Okay. So do is to coax them out by trick. तो उनको मनाना पड़ेगा या persuade करना पड़ेगा by trick. Trick से. तो इसको हम coax पढ़ते हैं. coax नहीं पढ़ते हैं. It's coax. 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 यानी कि और ऐसे भी पढ़ सकते हो. तो coax. Okay. Them by out by trick. So she considered a while. तो उसने कुछ देर देखा and then climbed up the wall and let herself hang down by her hind legs. hind side होता है ना, hand side नहीं होता है, hind होता है. hind leg मतलब पीछे से. जैसे कि पीछे से होता है, पीछे की जो उसने legs from a peg. और उसने कोई तो होगा सिर्फ पैग टाइप होता है ना, बने रहते हैं वॉल में. तो उसने कुछ किसी में तो अपने हाइंड साइड और ऐसे लटक गई वो पैग से. एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड, और वो मरने का उसने प्रिटेंड मतलब कि क्या होता है प्रिटेंड, यानी कि बहाना बनाया, मरने का बहाना बनाया. बाय एंड बाय अ माउस पीप्ड आउट एंड सॉ द कैट हैंगिंग देयर. जैसे ही बाय बाय एंड बाय, ठीक है, बाय एंड बाय मतलब एक के बाद एक. लेट्स सी, वन बाय वन भी हो सकता है, बाय एंड बाय, बाय एंड बाय एंड वन बाय वन. difference. Okay, one by one, not by and by. Let's see. Okay, so by and by का मतलब होता है after a short time, eventually or soon. It talks about time, old fashioned or poetic. By and by he understood the truth. After some time, धीरे धीरे और कुछ समय बाद. One by one मतलब एक एक करके. तो यहाँ पे by and by यानी after some time. ठीक है. So after some time, a mouse peeped out and saw the cat hanging there. कुछ समय बाद, after some time. By and by का मतलब होता है after some time. ठीक है. So let's say after some time. I'm not writing it, but I'll just copy paste it. Okay. After some time. ठीक है. After some time, a mouse peeped out. उसने बाहर झांक के देखा. पीप मतलब कि बाहर, जैसे वो पीप होल नहीं होता है डोर में, उसमें झांकते हैं बाहर से. So peep out. Peeped out and saw the cat hanging there. और उसने देखा कि बिल्ली को झूलते हुए. Aha! It cried. Aha, it cried. You are very clever, madam, no doubt. और जोर जोर से चिल्लाने लग गया. You are very clever, madam. मैडम आप बहुत चतुर हो, कोई शक नहीं है. But you may turn yourself into a bag of meal hanging there. But लेकिन तुम अपने आप को bag of meal बन सकती हो if you like. Yet you won't catch us coming anywhere near you. Yet you won't catch us. Won't का मतलब you would not. But you may turn yourself into a bag of meal hanging there. तुम अपने आप को एक खाना भी बन सकती हो if you like. Yet you won't catch us coming anywhere near you. But अब तुम हमको पकड़ नहीं सकोगी. So you won't catch us मतलब you will not या would not. यहाँ will not हो गया. You won't catch us. So is it you will not or you would not? Future tense. You're saying confidently. You will try, but you will fail. Okay. So if you like, and you yet you won't catch us in the near future.
anywhere near you. Okay, so ये हो गया. If you wise, you won't be deceived by the innocent ears of those who have once found to be dangerous. अगर तुम चतुर हो तो तुम कभी भी डिसीव मतलब हार नहीं सकते हो बाय इनोसेंट एयर्स ऑफ दोस. अब देखो यहाँ पे फिर से एक एयर वर्ड आ गया है. लास्ट टाइम भी हमने स्टोरी में देखा था कि एयर आया था और एयर फीलिंग के लिए आया था. अब यहाँ पे एयर्स का मतलब क्या होता है देखते हैं. इनोसेंट एयर्स ऑफ मीनिंग. और फिर फेक एयर्स ऑफ इनोसेंट एयर्स मतलब pretending टू बी इनोसेंट. ओके सो हमको यहाँ पे देखना है व्हाट डज इट मीन बाय एयर हेयर. बनावटी और दिखावा. एयर मतलब कि यहाँ पे क्या होता है. लास्ट टाइम एयर का मतलब फीलिंग था. यहाँ पे एक और हो गया कि इनोसेंट बनावटे से whom you have once found. तो हम लोग कभी भी उनके मासूम इरादे हम नहीं बोलते मासूम इरादों से हम कभी भी उनके जाल में नहीं फंसेंगे जिनको हमको लगता है कि वो एक बार डेंजरस होते हैं. जैसे कि कोई अगर हमको डेंजर आदमी लगता है और वो कुछ बहाने बनाने लगे तो हम लोग फिर डरते नहीं है उससे. तो सेम चीज ये है. ठीक है. ठीक है थोड़ा सा ऊपर हो गया थोड़ा सा. हाँ. तो इनोसेंट एयर. एयर का मतलब यहाँ पे क्या है कि बना बहाने. ठीक है बनावटी बहाने. बनावटी बहाने. बनावटी बहाने. ठीक है. तो ये हो गया. देर वॉज अ हाउस दैट वॉज ओवर रन विथ माउस. ऑफ नहीं आया विथ आएगा. अ कैट हर्ड ऑफ दिस. कैट ने सुना इसको और सेड टू हरसेल्फ उसने खुद को बोला दैट्स द प्लेस फॉर मी. एंड ऑफ शी वेंट एंड टुक अप हर क्वार्टर इन द हाउस. टुक अप मतलब ले लिया. क्वार्टर मतलब जगह. एंड कॉट द माइस वन बाय वन एंड एट देम. उसने एक एक करके. तो यहाँ पे वन बाय वन है और यहाँ पे बाय बाय एंड बाय है. तो वन बाय वन मतलब एक एक करके उसने माइस खा लिए. और खा लिए. एट लास्ट द माउस कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर. और एक बार अंत में चूहे जो थे वो नहीं सह सकते थे और डिटरमाइंड टू टेक टू देयर होल्स एंड स्टे देयर. मतलब उन्होंने अपने अपने होल में शरण ले ली और वहीं पे उन्होंने रहा. द चेकवर्ड सेड टू हरसेल्फ. और अब कैट खुद को बोलती है कि ये तो बहुत ही अजीब है. द ओनली थिंग इज टू डू कोएक्स देम कोएक्स देम आउट ऑफ ट्रिक. या तो उनको एक किसी ट्रिक के द्वारा बाहर निकाला जाएगा. सो शी कंसीडर्ड अ वाइल. तो उसने कुछ देर देखा. एंड देन क्लाइम्ड अप द वॉल एंड लेट हरसेल्फ हैंग डाउन बाय देयर हिंड लेग्स फ्रॉम अ पेग एंड प्रिटेंड टू डेड. तो उसने वो वॉल पे चढ़ गई और खुद को लटका लिया उसने पीछे के पैरों से फ्रॉम द पैग. एंड प्रिटेंडेड टू बी डेड. और उसने डेड बनने का प्रिटेंड किया. बाय एंड बाय का मतलब क्या होता है. आफ्टर सम टाइम ही अंडरस्टूड. और माउस एक आया और सॉ द कैट हैंगिंग देयर. उसने देखा कि कैट को झूलते हुए. तो उसने बोला हाँ इट क्राइड. उसने बोला चिल्लाया. ये रोया नहीं चिल्लाया. यू आर वेरी क्लेवर मैडम. तुम बहुत चतुर हो मैडम. नो डाउट कोई शक नहीं है. बट यू मे टर्न योर सेल्फ इन टू अ बैग ऑफ मील हैंगिंग देयर. लेकिन तुम खुद को एक खाने का बैग बन सकती हो इफ यू लाइक. येट यू वोंट कैच अस कमिंग एनीवेयर नियर यू. बट तुम कभी भी हमको पकड़ नहीं पाओगे. तो ये अपनी स्टोरी है आज की. कल फिर मिलते हैं. बाय.